Now let us learn from Apostle Paul what is pain, endurance of pain. He talks about pain. आइए पौलुस प्रेरित के जीवन से सीखेंगे कि दर्द को कैसे सहन करना है. You know, I want to tell you, Apostle Paul will inspire us to more violent endurance of pain. तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पौलुस प्रेरित जो है वो हमें कैसे धैर्यवान बनना है वो सिखाता है. Hallelujah. If you read in the Bible 2 Corinthians chapter 11, 23 to 29. अगर तुम पवित्र शास्त्र को देखोगे दूसरा कोरिन्थियन का 11 अध्याय 23 to 29. 23 से 29. Okay. Now here I'm going to teach you on speaking of his painful experiences. तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे वो अपने खुद के दर्दनाक अनुभवों को कैसे बयान कर रहा है. He said that वो कहता है compared to his opponents, he was in far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ. मैं उनसे बढ़कर हूँ. अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु में, जोखिमों में. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए. 3 बार मैंने बेंटे खाई. Okay, now 25 says, 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, and night and day I was spent in the deep. 25 वचन कहता है कि 3 बार मैंने बेटे खाए, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में Now काटा. Apostle Paul is teaching how to endure violent pain. अभी प्रेरित पौलुस सिखाता है कि ये बड़े दर्द को कैसे सहन करना है. Okay, I have been on frequent journeys, 26, in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from my countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship through my sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. My goodness. मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुंदर के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा. परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में रहने में. My goodness. Paul's condition is our condition today. तो पौलुस की जो हालात थी वो आज हमारी हालात है. Danger from rivers, everywhere flooded. We are in danger. सब चीजों में जोखिम है. नदियों से जोखिम. Danger from robbers. We have fear of robbers. डाकुओं के जोखिम में भी, हमें भी डाकुओं से जोखिम. Dangers from countrymen. अपनी जाति वालों के जोखिम में, पॉलिटिशियंस से जोखिम. Dangers from the Gentiles. They don't know who is the living God. अन्य जातियों से भी जोखिम, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते. Dangers in the city. You can't live in the city. 666 is coming. नगरों में भी जोखिम है, नहीं रह सकते क्योंकि 666 आ रहा है. Dangers in the wilderness. जंगल में भी जोखिम. Dangers on the sea. My goodness. समुद्र में भी जोखिम. Dangers among the false brethren. Very, very difficult. झूठे भाइयों के बीच में भी जोखिम बहुत They open their mouth with lies. वो मुंह खोलते झूठ के साथ. I have been in labor and hardship. He says, I have been in labor and hardship through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. वो कहते हैं कि परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, और जाड़े में, उगाड़े में, उगाड़े रहने में. Paul is talking about his painful experience on the earth. देखो पौलुस अपना वो दर्दनाक अनुभव को बयान कर रहा है पृथ्वी पर. Now listen. Now next word says, apart from such external things, there is the daily pressure on me of concern of all the churches. My goodness. All the problems of the churches over Paul. और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है. Ayyo, think about. Some people they do thumbs down, some people thumbs up. How you feel? I'm in the place of Paul.
कुछ लोग थम्स अप करते हैं, कुछ लोग थम्स डाउन करते हैं, तो कैसे लगेगा? मैं भी पौलुस की जगह पे Praise God for all this pain. प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारे दर्द के And the लिए। Bible says, who is weak without my being weak, who is led into sin without my intense concern. किसी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के पाप में गिरने से मेरा जी नहीं दुखता। Come on, somebody say hallelujah for this. कोई तो हालेलुया कहे। Who is weak without my being weak? किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं, किसी I की will निर्बलता से never मैं be निर्बल weak नहीं because of somebody's weakness. किसी की निर्बलता से मैं निर्बल Meaning, नहीं I हूँ। don't look at a man, I look at the Jesus who was despised, who was hurt on the cross. यानी मेरी नजर मनुष्य पे नहीं है, लेकिन मेरा नजर यीशु मसीह पे जो मेरे लिए क्रूसित हुआ क्रूस पर। Who is led into sin without my intense concern. किसके पाप में गिरने से मेरा जी नहीं दुखता। Hallelujah. If you're falling in sin, I am not hurt. अगर तुम पाप में गिरते हो तो मुझे दुख नहीं। I gone through, I said the truth. I have been speaking this truth because you cannot rob my joy because you fall in sin. अगर तुम पाप में गिर रहे हो, तुम्हारे पाप के कारण मेरा दुख, मेरी खुशी को तुम छीन नहीं सकते। Number one, Paul is expressing his pain on the earth, but he's not affected by that pain. देखो, पहला मुद्दा, पौलुस अपने दुख को जो इस पृथ्वी पे वो सहन कर रहा है, उसको बयान कर रहा है, लेकिन उसे वो दर्द से इसको अफेक्ट नहीं हुआ। वो दर्द से उसे कुछ प्रभाव नहीं हुआ। Hallelujah. And again the Paul says in 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, हाँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का दूत कि मुझे घुसा मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। When Paul was afflicted with this pain, देखो, जब पौलुस को ये दर्द से वो ग्रस्त था, see what his statement is. वो क्या कहता है? देखो, Concerning this, I implored the Lord 3 times that I might leave. वो कहता है कि इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझे यह दूर हो जाए। Let it leave me, Lord. ये दर्द मुझसे छोड़ दे प्रभु। But God has said to me, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत For है। power is perfected in weakness. He said, I prayed like this. That doesn't mean that I don't want to keep her. वो कहता है कि मैंने ऐसे प्रार्थना की कि मैं उसे नहीं रखना चाहता हूँ, To satisfy my own selfish मेरे desire. खुद के स्वार्थीपन के कारण। No, I loved her too much. मैं उसे बेहद प्यार करता था। Now let me tell you, he said, grief is natural. उसने कहा, पीड़ा तो स्वाभाविक है। I know, for I have grieved. मैं जानता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हुआ, विलाप हुआ है, But my grief is for myself. लेकिन ये जो दुख है वो मेरे लिए है। Then he says this statement, I love this. और फिर वो ये वाक्य कहता है जो मुझे बहुत पसंद है। I know my wife is far better off with the Lord. वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छे स्थान पे प्रभु के साथ में है, Then he says, but I am left behind and lonely. लेकिन अभी मैं अकेला रह गया और मैं अकेला महसूस करता What हूँ। does this story say? तो फिर ये कहानी क्या कहना The चाहती story is saying grief is natural. है? ये कहानी बताती है कि दुख जो We है वो all will बहुत ही go through this स्वाभाविक है। natural grief. देखो, हम सबको ये दुख से गुजरना ही है, But he said, I love this. I found peace in the will of God. लेकिन मुझे बहुत पसंद आया एक बात जो उसने कहा कि मैंने परमेश्वर की इच्छा में अपने आप मैंने शांति And पाई। he said, she is far better place. वो तो बहुत ही उत्तम जगह पे गई है। There will be no tears in heaven because there is no sorrows, no pain. क्योंकि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई Why? दुख नहीं है। I want to give you a few things now. क्यों? अभी मैं कुछ चीजें तुम्हें बताना Write चाहता down हूँ। these things. Why there is no pain there? अभी ये लिखे, स्वर्ग में दर्द या Why there is no sorrow क्यों there? कोई आंसू नहीं है, Why there is no tears there? वहाँ पे कोई आंसू नहीं रहेंगे। क्यों? Because number one, God himself will be there. पहला मुद्दा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहाँ पर होंगे। Psalms 139, 7 to 10. भजन संहिता 139 1 से 10। Come on, somebody say hallelujah. Where can I go from your spirit? In Revelation we read 21.
रेवलेशन का 21 में हमने पढ़ा, I heard a loud voice from the throne saying, मैंने सिंहासन से एक ऊंचे शब्द से आवाज सुनी, Behold, the tabernacle of God is among men, देखो परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के बीच में and he है will dwell among them, और वो हमारे बीच में आकर निवास and करेगा they shall be his people, और वो हमारे लोग, वो हम उसके लोग होंगे and God himself be among them, और परमेश्वर हमारा होगा, and he हमारे will होंगे। wipe away every tears from their eyes. और सबके आंसुओं को वो पोंछ देंगे। This is what we read in Revelation 21. और प्रकाशित वाक्य का Now, 21 में हमने यही let us पढ़ा। look into the scriptures. God himself will be there with us. तो आइए वचन को देखेंगे, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ में रहेंगे। You know, Psalms 139, भजन संहिता 129 verse 7. Where can I go from your spirit? तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, Where can I flee from your presence? या तेरे सामने से मैं किधर Now भागूं? listen, if I ascend to heaven, you are there. यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां If है, I make my bed in Sheol, behold, you are there. यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है, If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me. यदि मैं बोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ में अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा And your right hand will lay hold of me. और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रखेगा। So that means there is no escape from God. यानी परमेश्वर से हम भाग नहीं सकते। Hallelujah. Wherever you go, he is there. जहाँ पर भी तुम जाओगे When वहाँ पर वो God है। is with you, there is no tears, there is no pain, there is no sorrows. देखो जब प्रभु तुम्हारे साथ में तो वहाँ पे कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं और कोई भी पीड़ा नहीं। You know, the people seek joy through pleasure. तो लोग अपने जीवन में आनंद उठाना चाहते, कोई मनोरंजन कर You know, they are seeking करके। joy in this earth. देखो पृथ्वी पे लोग अब मनोरंजन चाहते हैं। They seek the joy like this, having pleasure. तो देखो ये अपने जीवन में खुशी पाना चाहते, कुछ मनोरंजन की हाँ। चीजों को करके। You know, fulfilling, you know, many things, unfulfilling ways. They want to enjoy the joy. तो जो वो जो है अपने जीवन में कुछ खुशी लाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ये सारे चीजों को करके वो अपने जीवन में खुशी पाएंगे। Pleasure in physical bodies. शारीरिक चीजों से वो खोजते हैं, Pleasure in material things. They आर्थिक- seek pleasure in material things. वो आर्थिक चीजों में खुशी देखना चाहते, पाना चाहते You know, हैं they seek pleasure in various amusements. और अलग अलग चीजों में वो खुशी पाना चाहते हैं They seek pleasure in evil pursuits. और अपने बुरे कामों में भी वो खुशी लेना पाना चाहते That means हैं। people wants joy, यानी सब लोग खुशी चाहते but हैं। they are ready to do anything to get this joy. देखो ये खुशी पाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, But they करना don't चाहते हैं। understand. The first thing is God is there लेकिन wherever you go. वो ये बात नहीं समझते कि जहाँ पे भी तुम जाओगे तो पहला If you- प्रभु सब स्थान पे If you है। come to this understanding, अगर तुम्हें समझ पर the आओगे Lord is there wherever you go, कि जहाँ पर भी तुम जाते हो वहाँ पे you प्रभु will है, never lose your joy. तो तुम अपने आनंद को You कभी will नहीं never खोओगे। have tears. कभी आंसू नहीं You will देखोगे, never have sorrows. कभी भी कष्ट You will पीड़ा नहीं never होगा, go through pain. कभी तुम दर्द से नहीं Psalm गुजरोगे। 16 verse 11 says, भजन संहिता 16:11 कहता है, You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता You है। need to understand this. Wherever God is, तुम्हें ये बात समझना जरूरी कि जहाँ पे भी प्रभु He हैं, will make known to me the path of life. वो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा And in His presence there is fullness of joy. और उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी And है in your right hand there are pleasures forever. और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता What है। people are seeking? तो लोग किस बात को ढूंढ रहे They are seeking pleasure in physical body to have joy. देखो अपने शरीर में जो है वो प्लेजर ढूंढना चाहते ताकि कुछ खुशी मिले उन्हें। They are seeking pleasure in material things to have joy. देखो आर्थिक चीजों में वो खुशी ढूंढने की कोशिश करे ताकि उन्हें कुछ आनंद मिले। Hallelujah. They are seeking pleasure in various amusements. और वो बाकी के सारे मनोरंजन करने वाले चीजों में वो अपने आप को खुशी पाना चाहते They हैं are seeking pleasure even in evil pursuits. और वो
सारे बुरे कामों में भी वो खुशी But what the आनंद word पाना of God चाहते हैं। says, लेकिन प्रभु का वचन क्या you कहता will है? make known to me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In your presence there is fullness of joy. तेरे आनंद में आनंद की तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर Why है। there is no tears, pain and sorrows in heaven? क्यों स्वर्ग में कोई आंसू नहीं Come है, on. दुख नहीं है और पीड़ा नहीं है? God himself is present there. क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां पर है And in his right hand there are pleasures forever. और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता You है। know, once a young boy became a Christian, एक बार एक जवान लड़का वो क्रिश्चियन बन he गया, was baptized. उसने बपतिस्मा लिया। His uncle wanted to test him. उसका अंकल उसका परीक्षा लेना He चाहता wanted to था। understand his commitment towards God. वो जानना चाहता था कि परमेश्वर के प्रति वो कितना वचनबद्ध है। You know, this uncle asked this boy, ये अंकल ने अपने इस लड़के को भतीजे से पूछा, question number 1, पहला सवाल, what would you do if Jesus asked you to give up your new bike? तो तू क्या करेगा यदि यीशु मसीह तुम्हें अभी कहे कि तुम्हारे बाइक को तुम्हें किसी को दे देना है? You know, this boy answered, तो वो लड़का उत्तर देता है, he replied and said, well, if Jesus asked me to, I would give it. वो कहता है अगर यदि यीशु मुझे ऐसा करने को कहे तो मैं जरूर वो दे दूंगा। And the uncle asked the second question to this boy. फिर यह अंकल ने दूसरा सवाल पूछा है लड़के He को। asked him, if God tell you to go to other part of the nation as a missionary, would you say yes or no? अगर प्रभु तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें संसार के दूसरे भाग में जाना है, कहीं पर पृथ्वी पर जो है देश में किसी अलग देश में मिशनरी बनने के लिए, क्या तुम जाओगे? तो कहता हाँ मैं खुशी से Yes, जाऊंगा। if Jesus is saying, I would say yes. वो कहता है कि अगर यीशु मुझे कहेंगे कि जाने के लिए तो जरूर मैं हाँ I will कहूंगा। go. मैं जाऊंगा जरूर। Now finally, uncle, the third final question he asked this boy. तो फिर अभी ये तीसरा अंतिम सवाल ये अंकल पूछते हैं ये लड़के से, भतीजे What से। if Jesus would lead you into hell? क्या यदि यीशु मसीह तुझे नरक में ले जाएंगे तो तू क्या करेगा? This young boy replied, ये जवान लड़का बोलता है that's easy. वो तो आसान है। There is no hell where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह Come on. है, वहाँ पे कोई नरक नहीं There is है। no pain where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे कोई There दर्द is no नहीं। tears where Jesus is. जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पे There कोई is भी no sorrows आंसू where नहीं। Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है, कोई शौक नहीं This है। morning, before I close, I want to tell you, like this boy, you need to say, there is no hell where Jesus is. तो ये लड़के के समान तुम्हें बोलने को सीखना है कि जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पे कोई नरक There are नहीं है। no tears where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे कोई आंसू नहीं We है। will discover this when we get into heaven. So be prepared to get into heaven. ये बात की खोज हम करेंगे जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो तैयार हो जाओ Hallelujah. इस बात को जो है जानने के लिए। I'm talking about the real hope this morning. वो सचमुच की आशा के विषय में आज बोल रहा हूँ। You need to have the assured confidence in you. यानी तुम्हारे अंदर से तुम्हें एक धाड़स होना जरूरी है, कि धैर्य होना For जरूरी है। those who make Jesus the Lord of your life, जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनी प्रभु बनाया you know है। what will happen? You will turn from sin. क्या होगा? तुम पाप से मुड़ You will be जाओगे, baptized बपतिस्मा लोगे into Christ for sins forgiveness. और अब मसीह में बपतिस्मा लोगे अपने पापों की क्षमा पाने के And लिए। you will remain faithful unto death. यानी मृत्यु तक तुम वफादार Where रहोगे। Jesus is, there is no hell. जहाँ पर यीशु Come on. मसीह है वहाँ पे नरक नहीं And है। my point this morning is, where Jesus is, I will be there. और कहने का मुद्दा है यानी जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर मैं भी हूँगा। Hallelujah. I am good. Jesus is saying, heaven is real. Be real of this hope. देखो यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं हमें कि खुरा बाबा बा ये खरा बाबा स्वर्ग बाबा जो बा। है वो जीवित है, वो सच्ची है, सच्ची बात है। Hallelujah. तो निश्चय जाने की स्वर्ग है। I'm talking about real hope this morning. और मैं सच्चा खरा आशा के बारे I'm में not आज बोल talking रहा हूँ। about negativity, positivity. I'm talking about being there where Jesus is. मैं कोई नकारात्मक होने के बारे में या सकारात्मक होने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर यीशु है वहाँ पर I'm हमें not होना talking है। about your supernatural faith. I'm talking about where Jesus is, I will be there. यानी तो अलौकिक विश्वास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पर हमें जाना है। Be assured of this confidence. यानी इस बात के लिए तुम assured रहिए, धाड़स। Again and again, I want to talk to somebody this morning. I want to tell you, for those who make Jesus the Lord of their life,
देखो, जिन्होंने बार बार यही बात दोहराना चाहता हूं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया है, you know, you will turn away from sin. तो तुम पाप से मुड़ जाओगे। If you make Jesus as the Lord of your life, यदि तुम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु you will बनाओगे, turn from sin. तो तुम पाप से मुड़ You will be जाओगे। baptized into Christ for sins forgiveness. तो Baptism. बपतिस्मा लोगे, अपने पाप को से मुड़ जाओगे। Hallelujah. You will turn from sin. तुम पाप से मुड़ोगे। You will be baptized into Christ for sins forgiveness. तो तुम्हारे मसीह में तुम बपतिस्मा लोगे, अपने पापों को क्षमा Some people, they take the baptism, they will be delivered, their curses will be broken. No, the baptism is for your sins forgiveness in Christ कुछ Jesus. लोग ये सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा लूंगा तो मैं सारे छुटकारा पाऊंगा, सारे बंधन टूट जाएंगे। नहीं, बपतिस्मा इसीलिए लेना है कि पापों की क्षमापन पाया And when इसलिए। you commit to the Lord in the baptism in Christ, you are saying, I will remain faithful till the death apart me. और बपतिस्मा में के द्वारा तुम परमेश्वर के प्रति प्रतिबंधित हो जाते हो और कहते हो कि मैं हम अंत मृत्यु तक वफादार Come on, रहूंगा। like that young boy said, where it's easy, there is no hell where Jesus is. जैसे वो जवान लड़के ने कहा कि बहुत ही आसान बात है, जहाँ यीशु मसीह है कोई मृत्यु नहीं। There is no आंसू tears नहीं। where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे कोई आंसू नहीं There है। is no sorrow where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे कोई दुख नहीं। There is no pain where Jesus is. जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं There है। is joy in heaven. स्वर्ग में आनंद There is है, forgiveness in heaven. स्वर्ग में क्षमापन है। Hallelujah. There is all this pain, sorrow and tears are strangers. और ये सारे जो आंसू, पीड़ा, कष्ट होंगे, ये शोक होंगे, ये सारे जो है परदेसी I बन जाएंगे want to स्वर्ग में। prophetically pray and say eternity is coming. भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूँ कि अनंत काल आ रहा है। Eternity is coming. अनंत काल आ रहा है। Eternity is coming. अनंत काल आ रहा है। You can do a choice. आप चुनाव कर सकते हैं, Whether darkness, अंधकार, weeping रोना है or light या प्रकाश, or joy you want. या तुम्हें आनंद Which चाहिए? one you want? तुम्हें क्या चाहिए? Eternity is coming. अनंत काल आ रहा है। And eternity is coming. अनंत काल आ रहा है। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहे हैं। The choice is yours. चुनाव तुम्हारा है। You want to live in darkness? क्या तुम अंधकार में ही बने You हुए want to रहना चाहते हो, live in weeping? या तो तुम रोना चाहते हो, Or you want to live in light and joy? या तो तुम आनंद में, ज्योति में रहना चाहते You हो? need to choose this morning. आज सुबह को तुम्हें चुनाव करना है। What you do about Jesus क्या करते हो तुम यीशु के विषय में, determines which you will experience. यानी वही तुम्हारा अनुभव उस पर निर्भरित है। You need to determine this morning. आज तुम्हें निर्णय लेना है। I encourage you अभी मैं तुम्हें इनकरेज to करता take हूँ, Jesus today in your heart. अभी अपने दिल में यीशु को ले। I encourage you this morning. आज तुम्हें इनकरेज करता हूँ Take Jesus in your heart और अपने दिल में यीशु को ले। and say bye to tears. आंसुओं को बाय बाय कहें, Say bye to sorrow. दुख को, पीड़ा को बाय बाय। Good night, you sorrow. Good night, you pain. Good night, you tears, because my joy comes in the morning. तुम्हें कहना है कि गुड नाइट तुम आंसुओं को, गुड नाइट तुम शोक, आंसुओं को, पीड़ा को, क्योंकि मेरा जो खुशी है वो सुबह को आएगी। Hallelujah. I am receiving my joy. मेरे आनंद को मैं पा रहा हूँ। Be like Paul. पौलुस के जैसे Even though he was in pain, he never experienced the pain. भले वो दर्द में था लेकिन उसने दर्द He's को saying, अनुभव in नहीं the किया। pain, I'm becoming more strong. वो कहता है कि मेरे दर्द में तो और मैं सामर्थ्य In बन the रहा हूँ। distress, I'm joyful. मेरे पीड़ा में तो मैं बहुत ही आनंद मना This रहा हूँ। morning, God is giving an opportunity. आज सुबह प्रभु हमें एक मौका दे रहे In the sweet by and by, we will meet at the beautiful shore. हैं। समुद्र के तट पर हम सब एक बार मिलेंगे। Hallelujah. I encourage you to take Jesus today. एनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को ले। I'm telling you, Jesus is everything. He's a Yeshua. lover of our soul. यीशु मसीह सब कुछ है, हमारे प्राणों का प्रेमी है। No more tears. और कोई आंसू नहीं, No more pain. और दर्द नहीं, No more regret. और कोई पछतावा No नहीं, more sympathy. और कोई सिंपति नहीं, No more weariness. और कोई थकावट नहीं, No more anger. और कोई गुस्सा नहीं, No more fear. और डर नहीं। Hallelujah. There is only joy in heaven. केवल आनंद है स्वर्ग में। Are you there enjoying the word of God? क्या प्रभु का वचन का आनंद उठा रहे हो आज की सुबह में? Truth about heaven. स्वर्ग के विषय में सच्चाई। No tears. Don't cry. कोई आंसू नहीं रहेंगे, रो मत। I don't know what is crying means. मैं नहीं जानता रोने का मतलब क्या है। I don't know what is pain means.
मुझे पता नहीं ये पीड़ा दर्द का मतलब क्या I है। don't know what is weakness means. मुझे पता नहीं ये कमजोरी का मतलब क्या है, But I heard in the weakness I'll be strong. लेकिन मैंने सुना है मेरे कमजोरी, मेरे दुर्बलता में मैं बलवंत बनूंगा। I heard where Jesus is, there is heaven. और मैंने ये सुना है कि जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे स्वर्ग आता है, Where Jesus is, there is no hell. जहाँ पे यीशु मसीह आते हैं वहाँ पे नरक Come on, नहीं somebody है। clap your hands and stand up and dance and rejoice and praise the Lord. Jesus is in my family. I will not see hell. कोई तो ताली बजाए, उठे खड़े होकर चिल्लाए और कहे कि यीशु मसीह मेरे परिवार में है तो मैं बिल्कुल दुख नहीं Jesus in my life, there is no hell in my life. यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो कोई नरक What नहीं। is hell? Hell is crying. One day I'll teach you on hell. एक दिन मैं सिखाऊंगा तुम्हें नरक कैसे रो रहा है करना। Hallelujah. God bless you.